हमारा आर्टिकल 48 अल्फा क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 48 अल्फा? एनीवन? आर्टिकल 48 अल्फा? Sir, organize agriculture and animal husbandry. I think that is not right. That is protection of environment and forests. 48 alpha is to protect environment and safeguard wildlife and forests. Okay. That is 48 that you're talking about, animal husbandry. उसमें cow Yes, slaughter sir. भी आ Okay. जाता है, ठीक है? Yeah, okay. To protect forests and wildlife. What is article 43 alpha? हाँ जी, 43 अल्फा क्या है? So that is participation of workers in the management of industries. Yes, that's correct. Participation of workers in the management of industries. ठीक है? So keep revising your stuff, otherwise it would be difficult for us to get things. ठीक है? अभी जैसे हमने पढ़ा था, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नए ऐड हुए थे और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके पार्ट 4. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से पार्ट में आता है? विच पार्ट? आर्टिकल्स 36 to 51 इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Part 4. Yeah, this is a bare minimum you should know. Abhi there are certain articles which are outside, certain directives, certain directive principles which are outside part 4 of the constitution, which are outside part 4 of the constitution. Which are those? Let's see them as well. उसमें number 1 है claims of SCs and STs to services. Claims of SCs and STs to services. ठीक है? Next is, इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल किसी को पता है? 335. Which part? Part 16. Next is instruction in mother tongue. इसका तो आप आर्टिकल बताएंगे, हम पढ़ चुके हैं पहले. Instruction in mother tongue. Which article? 350A. 350 alpha. Very good, excellent. Instruction in mother tongue. Article 350 alpha. ठीक है? Next we have development of Hindi language. इसका आर्टिकल किसी को पता है? Development of Hindi language. Anyone? Anyways, it's article 351 and it is in part 17. Part 17. So apart from those directives which we have in part 4A, there are certain others which are a part of different parts of the constitution. First is this claims of STs and STs to services, SC/STs, article 335. Then instruction mother tongue, article 350 alpha, and development of Hindi language, that is article 351. ठीक है? This by this we finish our directive principles. Now the next, one of the most important parts also is fundamental duties. So how many fundamental duties are there? 11. Which is the 11th one? राइट टू एजुकेशन हमने पढ़ा था, 86 अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो एक फिलोसोफर है लास्की, उनकी बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है
rights are claims not empty of duties. इसका मतलब समझे आप? It means that when we enjoy the rights, there is a corresponding responsibility for us to perform our duties as well. So rights are claims not empty of duties. So it comes with the responsibility of performing the duties. Acha, did we have fundamental duties at the time of formation of our constitution, framing of our constitution? No, sir, it was not incorporated in the original constitution. Yes, this is an important. So it was not in the original constitution, not in the original constitution. It was added in 1976 by the 42nd Amendment Act of 1976. This added how many? 10 fundamental duties. And subsequently, by the 86th Amendment Act, कब हुई थी ये? When did it take place? 2002? 2002. We added an 11th fundamental duty of right to education. Anyone have any idea किस committee की recommendations पे ये हमारी? स्वर्ण सिंह कमेटी थी सर. Yes, Swaran Singh committee. On the recommendation of Swaran Singh committee, ये किसने बिठाई थी कमेटी? किसकी सरकार थी तब? अटल बिहारी वाजपेयी. इंदिरा गांधी. अटल बिहारी वाजपेयी तब कहाँ थे? 1976 में कब थे? Sorry. 1976 में तो अटल बिहारी वाजपेयी, अभी जनसंघ की तो सरकार 77 टू 80 बनी थी पहली. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इमरजेंसी के टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि एक सेपरेट चैप्टर has to be included for the fundamental duties. Okay? So फिर क्या हुआ? 42nd amendment आई, जैसे हमने पहले पढ़ा. तो it added a new part 4A to the constitution and article 51A 51 alpha. ठीक है, तो इसमें 10 fundamental duties आपकी ऐड हो गई. We had 10 fundamental duties. ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, वो सारी तो एक्सेप्ट नहीं हुई थी. तो फाइनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सेप्ट हुई थी, ये आपकी ना टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इट मे आस्क विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. So you should remember that. So number 1, to abide by the constitution. To abide by the constitution and respect national flag and national anthem. हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन. हमारा हाँ जी, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है गाइस? वंदे मातरम. सर जन गण मन. नेशनल एंथम जन गण मन ही है. दैट इज a national song. वंदे मातरम is a national song.
किसने कंपोज किया था जन गण मन? हु कंपोज्ड? सर रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। गुड गुड। टू चेरिश एंड फॉलो, आपको ये पेरिफेरल नॉलेज भी पता होनी चाहिए। और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल कर, सही सही बात है। टू चेरिश एंड फॉलो, नोबल आइडियल्स, प्लीज पुट योर कैमराज ऑन ऑफ। That inspired the national struggle. ठीक है, नेक्स्ट। किसी को और पता है व्हाट कुड बी आवर फंडामेंटल ड्यूटीज? किस तरह हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होना चाहिए? शूट इन समथिंग दैट यू थिंक कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस गाइस, बी participative in the class to uphold and protect the sovereignty and integrity of India। ये हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है ना? ठीक है, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। लंच नहीं किया अभी? तो लंच के बाद क्लास करते हैं, अगर लंच नहीं किया है तो। Sir, take care of public property. यस, just try to before I list them out, I want you to use your mind to protect public property. What else? What else? एक तो हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, फिर देखते हैं कि जो कितना इंटरसेक्शन आपकी सोच में और जो एक्चुअल फंडामेंटल ड्यूटीज में, व्हाट इज द इंटरसेक्शन? व्हाट एल्स? Sir, we can kind of disaster preparedness kind of duty अगर कर सकते हैं सर, कोई ट्रेनिंग या कम्युनिटी ड्रिल्स टू एनहेंस द रेजिलियंस इन द फेस ऑफ नेचुरल या मैनमेड कोई ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हो जाता है तो उस टीम के लिए। डिजास्टर अवेयरनेस। और बताइए, और सोचिए। डिजास्टर किसी भी तरह का हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, कोई राइट्स भी हो सकते हैं, है ना? ये भी एक जी तरह का सर। डिजास्टर। और सोचिए, और क्या ड्यूटी होनी चाहिए एज अ सिटीजन हमारी? Cleanliness. यस, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखते हैं ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि नहीं। व्हाट एल्स? सर काइंड ऑफ सर encouraging citizens to prioritize their physical as well as mental health, शुड इट बी प्रमोटिंग अ मतलब सर एक कल्चर प्रमोट होना चाहिए कि वेल बीइंग का थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, प्रिवेंटिव हेल्दी हेल्थ केयर मेजर्स। हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, व्हाट एल्स? ट्राई टू ब्रॉडन द एम्बिट ऑफ योर थिंकिंग, होराइजन ब्रॉडन करे, थोड़ा और वाइडली सोचिए। एक नागरिक की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है।
So you also mentioned about the education from age groups of 6 to 14. यस वो तो बिल्कुल। और कुछ? अगर मैं पूछूं आपको क्या लगता है कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो आप क्या क्या बस यही सोच पा रहे हैं आप? और क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? चलो, इवन दिस इज अ गुड स्टार्ट। सो नेक्स्ट है आपका फोर्थ, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, टू डिफेंड द कंट्री। जंग छिड़ जाएगी, है ना? तो क्या आपका काम नहीं है देश को प्रोटेक्ट करना? टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक है, जब भी जरूरत हो तो नेशनल सर्विस रेंडर करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना, म्यूचुअल हार्मनी एंड ब्रदरहुड, आपस में जो भाईचारा है उसको प्रमोट करना ना, टू क्रिएट अ वेरी वेरी कंजीनियल एटमॉस्फेयर। देन इसी के साथ है आपका रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमन। ये किसी ने बोला ही नहीं। रिनाउंस प्रैक्टिसेस, we see crimes against women increasing, so that has to be the responsibility as a citizen. Renounce practices derogatory to the dignity of women. ठीक है? Then value and preserve the rich cultural heritage. हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी देख रेख होनी चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना है फॉर कमिंग जनरेशंस। फिर आपका प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है, जैसे जो क्लाइमेट कॉन्शियसनेस, ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग्स, then sustainable lifestyle, all these things. To protect and improve natural environment, natural environment, इसमें क्या क्या आ जाएगा नेचुरल एनवायरनमेंट में? आपके रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी वाइल्ड लाइफ, सब कुछ जो whatever you can think of. फिर टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है मुझे? So research work. Is it only talking about research work? Try to think a little deeper into this. साइंटिफिक टेम्पर का मतलब एक चीजों को देखने का एक जो रुझान है, आपकी सोच थोड़ी सी साइंटिफिक होनी चाहिए। So we should give up those superstitious beliefs, all those things. थोड़ा एक scientific orientation of the mind, है ना? Research work is a part of that wider ambit. Okay. Then we have safeguard public property, जो हमने बात की। इसमें आपने क्या क्या बात किया था? पब्लिक प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो बोला था किसी ने शायद, ये आ गया इसमें। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है? एंड एब्जूर वायलेंस। तो ऐसे लिखने से आपको क्या हो जाएगा, एक बार याद हो जाएंगी ये ड्यूटीज। इसको एक दो बार और पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो इट विल बिकम ऑर्गेनिक टू यू। देन टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल अफेयर्स। ठीक है? द यंग सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री should strive for excellence. That's how the country will prosper.
in all spheres of life. ठीक है, and then the 11th duty, ये तो आप बताएंगे कौन सी थी, कौन सी थी? To provide what? Education. Opportunities for education. Provide opportunities for education. ये किसकी ड्यूटी है? Who should provide education? बताएं जरा, ये किसकी ड्यूटी है एजुकेशन प्रोवाइड करना? Parents or guardians. Yes, absolutely correct. Wonderful. Opportunities for education to his children, his or her children, और wards, बच्चों को wards भी कहते हैं, wards between 6 से 14 साल की उम्र। तो ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मन सिटीजन्स की है ना, ये स्टेट की नहीं। सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपने बच्चों को पढ़ाना, ये भी जिम्मेदारी है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना कि उनको पढ़ाओ आप, बिकॉज एन इलिटरेट पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल हो सकती हैं क्या? एनफोर्स की जा सकती हैं? हाँ जी गाइस, कैन दे बी एनफोर्स्ड फंडामेंटल ड्यूटीज? No. So they are non-justiciable. It is only a directive. It is a kind of a appeal to the people to be. दूसरा, they also do not extend to the foreigners. ये ड्यूटीज हमारी हैं सिटीजन्स की, तो फॉरेनर्स के ऊपर हम नहीं बोल सकते कि भाई आपकी भी फंडामेंटल ड्यूटी है। Excuse me, sir, I have a doubt. ठीक है, तो फॉरेनर्स को एक्सटेंड नहीं होती ये ड्यूटी। अब व्हाट डू यू थिंक, शुड देयर हैव बीन अ मैंडेटरी, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए थी, इसको लीगल इसको बनाना चाहिए था? शुड इट हैव बीन मेड enforceable under law? So the idea is it could not have been made enforceable, because that would then again make it the tyranny of the state हो जाएगी ना, स्टेट एक ऑटोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा स्टेट का। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट फंडामेंटल ड्यूटीज में? Excuse me, sir. या प्लीज। Sir, I have a doubt. Can SDGs be included in the fundamental rights, sustainable development goals? फंडामेंटल व्हाट? Can SDGs can be included in fundamental duties? ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको बता दी यही है ना आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। SDGs इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशंस। ओके, Yes, sir. तो हम उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट करते हैं, कुछ कुछ चीजें हम उसमें लेते हैं कि हर देश को अपना अपने हिसाब से वो कुछ टारगेट्स होते हैं वो अचीव करने हैं उस हिसाब से। सो दैट इज अ डिफरेंट आइडिया, दैट इज नॉट रिलेटेड per se to the fundamental duties as we have it. Okay, Okay, sir. yeah, ठीक है। any other doubts? किसी और को कोई डाउट? No, sir.
Next, we will start amendment of the constitution. Amendment of the constitution. What is the procedure? What are the things? ठीक है? So, कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट के लिए? Which is the article that provides for amendment to the constitution? Article 368. Which part? Part 20. ठीक है? It deals with power of the parliament to amend the constitution. Power of the parliament to amend the constitution. ठीक है? तो इसके अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ क्लॉजेज हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है या कहाँ नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए. नंबर 1, द constitutional amendment bill can be introduced in either house of parliament. तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. either house of parliament. ठीक है? नेक्स्ट, it cannot be introduced in state legislatures. तो मतलब ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, क्योंकि अगर हर स्टेट को पावर दे दी तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बन जाएगा. तो इट कैनॉट बी, दिस कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर्स. cannot be introduced in state legislatures, right? तो कुछ बिल्स होते हैं जो सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता. ठीक है? बट ये कैन बी इंट्रोड्यूस बोथ बाय मिनिस्टर एज वेल एज प्राइवेट मेंबर. प्राइवेट मेंबर पता है आपको क्या होता है? गाइस, प्राइवेट मेंबर, व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर? नहीं है तो मैं समझाता हूँ, अगर पता है तो बता दो. वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन किसी अपहोल्ड नहीं करता है वो. सर हु इज अ who नॉर्मल does not मेंबर. hold a ministerial position. यस यस, ही इज अ नॉर्मल मेंबर, राइट. ठीक है? तो इस बिल के लिए नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना ये बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है. नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, must be passed in each house by special majority. Special majority of both houses. ठीक है? दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए. ठीक है? अब इसमें जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है. नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग. जॉइंट सीटिंग कब होती है? जब दो बिल्स हों कोई, इसमें लोकसभा और राज्यसभा का डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो उस केस में आप जॉइंट सीटिंग होती है. नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग. नेक्स्ट, अगर कोई बिल जो फेडरल प्रोविजन मतलब स्टेट और सेंटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको इम्पैक्ट करता है, तो इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है? इफ इट इम्पैक्ट्स द फेडरल प्रोविजंस. नेक्स्ट,
अच्छा, जब ये बिल दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट क्या उस बिल को विदहोल्ड कर सकता है? हाँ जी गाइस, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, मस्ट। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए ही नहीं है इसमें, नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड, और प्रेसिडेंट को ये असेंट देनी ही पड़ती है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, इट इज नीदर रिजिड लाइक यूएसए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है बहुत रिजिड है, और नॉट फ्लेक्सिबल, और नॉट टू फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटेन, यूके। ठीक है, हमारा एक बैलेंस मिक्स है, वी हैव अ बैलेंस मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, और दूसरा पार्लियामेंट ना, हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है ना, तो पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है लेकिन विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, सो पार्लियामेंट cannot amend those provisions which form part of the basic structure। ठीक है, किसने दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? कल ही पढ़ा हमने, बताइए गाइस। केशवानंद भारती केस। यस, केशव नंदा भारती केस। कब आया था ये? 1973। यस, गुड। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस हैं जो certain provisions in the constitution can be amended by simple majority। ठीक है, कुछ प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं कहते हैं, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और कौन से तरीके हैं अमेंड करने के? स्पेशल मेजॉरिटी हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी एक हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, क्लियर है? स्पेशल मेजॉरिटी से कौन कौन से प्रोविजंस अमेंड होते हैं? Which are the provisions that are amended by the special majority of the parliament? पहला आपका आ गया एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, व्हाट एल्स? आर्टिकल 3 क्या था आपका? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट्स, ये सारा आपका
स्पेशल मेजोरिटी से होगा। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो सैलरीज और अलाउंसेस थे कौन से शेड्यूल में थे बताइए, कौन से शेड्यूल में था सैलरीज और अलाउंसेस वाला क्लॉज? शेड्यूल 2। फिर कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोरम, कोरम होता है, किसी को पता है कोरम क्या होता है? 1/10 मेंबर नहीं, 1/10 प्रेजेंट नहीं रहेंगे। होता क्या है? अगर मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है, आप बताओगे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसे नहीं होता ना। कोरम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम? इट इज द स्ट्रेंथ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। इट कैन बी पार्लियामेंट में किस कोरम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, कहीं पे भी। सो द कोरम इज द मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। पार्लियामेंट में वो स्ट्रेंथ 1/10 है। 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव टू बी देयर। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के 55 मेंबर होंगे तो मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह और सारे प्रोविजंस हैं, सिटीजनशिप वगैरह वगैरह। दूसरा एक है, ये एक्चुअली हमने जो प्रोविजन स्टडी किए हैं ये सिंपल मेजॉरिटी वाले थे, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की स्कोप में नहीं आते हैं। ठीक है। अब जो स्पेशल मेजॉरिटी वाले प्रोविजंस कौन से हैं? स्पेशल मेजॉरिटी, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी है? विदाउट रैटिफिकेशन वाली। ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रोविजन आएंगे? मोस्ट ऑफ द प्रोविजन इसी इसी कैटेगरी में आते हैं। पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस। ठीक है। ये मेजर इसमें आते हैं। और जो फर्स्ट सेक्टर जो सिंपल मेजॉरिटी वाले या स्टेट रैटिफिकेशन वाले नहीं है वो इसमें आते हैं। ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? एनीवन? व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? एनी आइडिया? It is the majority of the total membership of the house. Plus 2/3 of present and voting. इसका मतलब क्या है? देखो, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, फॉर एग्जांपल लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, तो टू मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप कितना होगा? 273 मिनिमम होने चाहिए, दैट इज द मेजॉरिटी। दूसरा, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 66%, 66.66%। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मिनिमम स्पेशल मेजॉरिटी के लिए आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? कुछ आइडिया? नहीं, बताता हूँ। देखो, अगर उस टाइम पे हाउस में 400 लोग प्रेजेंट है, 400 का 1/3 कितना हुआ? 133। तो 266, 266, बट 266 तो 273 से कम है ना? 266 तो कम है ना उससे, 273 से, लेस देन 273। तो इससे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम 430 मान ले, 430 अगर स्ट्रेंथ हो, इसका 1/3 कितना हुआ? 420 मान लो, अगर 140, 280। तो दिस तो मिनिमम
अराउंड 420 अगर स्ट्रेंथ है तो 280 लोग अगर पास कर देंगे, दैट बिकम्स 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये जो फिगर है 280 वाली, ये 273 से भी ज्यादा है और ये मेजॉर 2/3 भी है जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। तो ये होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। समझ आया आपको? हैव यू गॉट इट? Sir, so the case in the of 400 people, so that will not be the special majority because the number is less than 273. हाँ, मतलब आपके मिनिमम 273, मतलब जो भी मेजॉरिटी आएगी ना वो 273 से ऊपर ही होनी चाहिए। 273 क्यों होनी चाहिए? 545 से ज्यादा, हाफ, इसका हाफ से ज्यादा होगा ना, 272 + 1, है ना? तो अगर आप इतनी ले लो तो ये तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो होना मुश्किल है इस केस में। समझिए आप, दिस हैज Yeah. टू बी, इट हैज टू बी लाइक 273। अब दिस हैज टू बी टू, मतलब ये 2/3 जिसका होगा तो इसमें 1/3 और ऐड कर लो, तो दैट हैज टू बी द मिनिमम मेजॉरिटी रिक्वायर्ड। इसको आप डिवाइड कर लो, कितना हो गया इसका? 136.5, ठीक है। तो ऐड अनदर 136.5 इन दिस, व्हाट वुड इट बी? 273 904 409.5, ठीक है, 410 लोग, ठीक है, 410 लोग मिनिमम होने पड़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। यू गॉट द आइडिया? आई एम ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लेन सो दैट यू गेट द आइडिया व्हाट इज अ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। क्लियर Yes, sir. है ना? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, सेम अप्लाइज फॉर राज्यसभा ऑल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक प्रोविजन है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस ratification of half of the states, ratification of half of the states। तो स्टेट्स की ratification कब चाहिए आपको? जब कोई बिल फेडरल प्रोविजंस को इम्पैक्ट करता है। तो इसमें लिख लीजिए कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं। एक तो हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि ये हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशरी हमारी ऊपर से नीचे नीचे तक सेम है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव पावर और इधर लेजिस्लेटिव भी लिख लो, एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट्स, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना है। फिर आपका जो 7th शेड्यूल था उसमें 3 लिस्ट है, तो उसमें कुछ चेंज करना है, वो भी इसमें आएगा। देन यू हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, उसको ऊपर नीचे करना है, चेंज करना है, तो वो भी आपका रेटिफिकेशन चाहिए होगी आपको, ठीक है। और पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 को ही अगर अमेंड करना है, जो पावर ऑफ अमेंडमेंट है, तो उसके लिए भी आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? हमने Sir, फंडामेंटल, हाँ जी बोलिए। in the point number 9, you said that procedure of amendment in our country is neither rigid like USA nor flexible like Britain. Could you please explain rigidity and flexibility? Like, या श्योर। रिजिडिटी का मतलब देखो क्या है कि इस केस में क्या होगा
कि it will be very difficult to amend the constitution. ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होंगे। अब इंडिया में क्या है, हमने मैक्सिमम प्रोविजंस हमारे सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाते हैं, है ना। हमने देखा कि काफी सारे प्रोविजंस है जो सिंपल मेजॉरिटी से हम पास कर देते हैं। लेकिन यूएस में देयर इज अ वेरी वेरी, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि क्या प्रोसीजर है, बट यूएस में जो प्रोसीजर है वो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट है। उसमें बहुत ज्यादा रेटिफिकेशन चाहिए होती है डिफरेंट लेवल्स पे, जिससे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्लॉज अमेंड करना है, इट बिकम्स क्वाइट क्वाइट अ टास्क। ठीक है, इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना आसान है, इजी टू अमेंड, इजी टू अमेंड मतलब सिंपल मेजॉरिटी वाला। हमारा रिजिड भी है क्योंकि कुछ क्लॉजेस हमारे स्पेशल मेजॉरिटी से ही हम अमेंड कर सकते हैं, और कुछ हम सिंपल मेजॉरिटी से कर देते हैं। कुछ कंट्रीज में क्या है, रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, और कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे यूके में क्या है, इजीली अमेंड हो जाता है। यूएस में बिल्कुल भी इजीली नहीं होता। हमारा क्या है, हमने डिसाइड किया है, हमने उसको थोड़ा सा रेगुलेट किया कि कौन से प्रोविजंस को हमने रिजिडिटी में रखना है और कौन से हमने फ्लेक्सिबिलिटी में रखना है ना। तो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये हमारी फेडरल प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोटेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर। कैसे, बताओ मुझे, बताओ नूरदीप। Sir, हाँ जी। because we need the special majority to. हम तो प्रोटेक्ट, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कैसे करता है, वो तो पता ही है कि रिजिडिटी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट फेडरल स्ट्रक्चर कैसे प्रोटेक्ट होगा उससे। Because we need the permission or discussion with the states as well. Like, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करेगा ना वो। okay. पार्लियामेंट की पावर विल बी लिमिटेड। लिमिटेड मतलब पार्लियामेंट की मन मर्जी से नहीं कर सकता वो, कि उसको भी वहां पे भी कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 चाहिए। ठीक है, 273 अगर चाहिए तो 410 लोग वहां प्रेजेंट होने पड़ेंगे। और जनरली इतनी मेजोरिटी सेंटर में नहीं होती, कभी कभी होती है पार्टी इन पावर के पास। तो इसीलिए दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू अमेंड। सो ये जो स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको थोड़ा सा सेफ गार्ड करता है। इसी तरह हम कहते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर। क्लियर है। Yes, sir, got it. Thank you. हाँ, हमने कल ये भी देखा था कि फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट कैसे होती है ना। उसमें क्या क्लॉजेस थे, केशवनंदा भारती केस पढ़ा हमने, मिनर्वा मिल्स केस पढ़ा। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर doctrine. Who gave this doctrine? Supreme Court in केशव नंदा भारती केस। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, एक मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर, नो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड। ये सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट से इवॉल्व हुआ है, इट हैज इवॉल्व्ड थ्रू द वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका सेकुलर, सेकुलर नेचर ऑफ आवर पॉलिटी, सेकुलरिज्म। ठीक है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। फिर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन व्हाट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आपका जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंडर आता है, जो जुडिशियल रिव्यू under article 13, that is also a part of the basic structure. Then balance between FRs and DPSP, ये किसने दिया था,
इसने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। ये हमने कल पढ़ा था। हाँ, मिनर्वा मिल्स केस। यस यस यस, वेरी गुड। ये मिनर्वा मिल्स केस ने ये डिस्प्यूट सेटल कर दिया था कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, बहुत सारे और जो कंपोनेंट्स ऐड होते रहते हैं इसमें कि इट इज नॉट डिफाइंड, इट कीप्स इवॉल्विंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल स्टेटस कुछ कुछ स्टेट्स का, किस किस स्टेट को क्या स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो लिखिए स्पेशल स्टेटस ऑफ सम स्टेट्स। जम्मू कश्मीर का तो खत्म हो गया, वो हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी स्टेट्स का पढ़ते हैं। इसमें आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। ठीक है, आर्टिकल 371 ये किसको प्रोवाइड करता है? महाराष्ट्र और गुजरात को। महाराष्ट्र एंड गुजरात को सम स्पेशल प्रोविजंस हैं उस रिस्पेक्ट में। फिर आपका आ गया 371 अल्फा, ये किस स्टेट के केस में? नागालैंड के केस में। ठीक है, देन 371 डी, ब्रावो, असम। देन 371 सी, दैट इज मणिपुर। ठीक है, देन 371 डी एंड ई, ये एक साथ में, ये किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट 371 एफ, ये सिक्किम का है। सिक्किम कब बना था? 1975 में प्रॉपर स्टेट बनी थी। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, फुल फ्लेज स्टेट बनी थी। फुल फ्लेजेड स्टेट। ठीक है, then you have 371G, this is for Mizoram। तो इधर एक प्रोविजन था कि सिक्किम की असेंबली में 30 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, मिनिमम 30 मेंबर्स इन सिक्किम असेंबली। और मिजोरम के केस में मिनिमम 40 मेंबर्स। ठीक है, देन यू हैव 371H, दिस वाज फॉर अरुणाचल। यहाँ पे भी मिनिमम 30 मेंबर्स। देन 371I, दैट इज फॉर गोवा, अगेन 30 मेंबर्स। ठीक है, और उसके बाद ऐड हुआ था 371J, दैट वाज फॉर कर्नाटका। तो ये आपको याद रखने कौन से आर्टिकल किस किस स्टेट्स के थे। 371 नागालैंड, 371 बी असम, मणिपुर। इसका एक कोड आप याद रख लो, इसको छोड़ के NAMASMAG। ठीक है, तो ये जो आपके पहले 5 है, NAMAS यहाँ से शुरू हो जाएगा, NAMASMAG, और बाद में कर्नाटका, और पहले आपका महाराष्ट्र गुजरात। NAMASMAG, that you can remember just to remember it। ठीक है, लिख लिया?
डन गाइस? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अभी हम आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स 52 से 78 ये प्रोवाइड करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन सा है? पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में इट प्रोवाइड्स फॉर दिस। तो उसमें इट प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, दे ऑल इंक्लूड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। सो ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। तो प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ द स्टेट है। पीएम क्या है? पीएम इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि G20 समिट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स द डेलीगेट्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है? हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? फर्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज प्लस यूटीज विद लेजिस्लेचर। अब किन किन यूटीज के पास लेजिस्लेचर है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हाँ यू भाई, यूटीज पूछ रहा हूँ मैं, यूनियन टेरिटरी। यूपी कहाँ की यूनियन टेरिटरी है? सॉरी सॉरी सर, स्टेट में समझा, स्टेट। स्टेट्स तो सबके पास ही लेजिस्लेचर है। यूटीज आपकी होगी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी, पुडुचेरी। दीज आर द ओनली यूटीज विद लेजिस्लेचर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबलीज के। ठीक है, पार्लियामेंट में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में पहले स्टेट असेंबलीज में होते थे एंग्लो इंडियंस, अब वो प्रोविजन क्वैश कर दिया गया है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इलेक्शन किस प्रोसीजर से होती है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। ये वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, बट आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। जैसे फॉर एग्जांपल कैंडिडेट्स, जैसे जो वोट कर रहे हैं, जैसे 5 लोग वोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे पास कैंडिडेट्स हैं ABCD। 4 कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, ABCD। ठीक है, तो हर बंदे को अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस वोट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये इसको फर्स्ट दे रहा है, इसको सेकंड दे रहा है, इसको फोर्थ दे रहा है। ठीक है, इस तरह से सभी अपना अपना देंगे। तो पहले सबके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स काउंट होंगे। जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस
वोट्स पहले काउंट होंगे, और जिसके सबसे कम वोट आएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको हटा दिया जाएगा, और उसका जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है वो बाकी कैंडिडेट्स के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स में ऐड कर दिया जाएगा। बस इतना समझ लो, इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के केस में, तो इट इज डिसाइडेड बाय ऑल डिस्प्यूट्स with respect to election of president decided by whom? Supreme Court. ठीक है, और उसका डिसीजन फाइनल होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग, चैलेंज नहीं हो सकता वो, फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई, कोई बंदा इलेक्शन प्रेसिडेंट बन गया और उसके बाद उसकी इलेक्शन कैंसिल हो गई, तो जो इलेक्ट होने के बाद जो प्रेसिडेंट ने जो काम किए होंगे वो नलीफाई नहीं होते, दे रिमेन। ठीक। और प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और लोकसभा का एमपी बनने के क्वालिफाई होना चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ एमपी ऑफ लोकसभा। इसके साथ साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है इसको, ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? प्रेसिडेंट ओथ जब लेता है, द प्रेसिडेंट कौन ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को? हु एडमिनिस्टर्स ओथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस, administers the oath of office to the president. Okay. Oath क्या होती है? To faithfully execute the office, to protect and preserve and defend the constitution, to devote himself to the service of nation. ये important नहीं है। ठीक है। प्रेसिडेंट बनने के बाद ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, अगर वो है तो उसको मेंबरशिप छोड़नी है। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने जैसे डिस्कस किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना। देन उसको राष्ट्रपति भवन में रहने का राइट मिलता है, रेंट फ्री, अम्यूजमेंट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं। ही एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज। ठीक है, इम्यूनिटी होती है लीगल लायबिलिटी फ्रॉम हिज ऑफिस, ही एंजॉयज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी फ्रॉम legal liability of his official acts, legal liability of his official acts। ठीक है, और ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग हिज टर्म he is immune from criminal, even in respect of his personal acts। ठीक है, he cannot be arrested or imprisoned। ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? प्रेसिडेंट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। अरेस्टेड और imprisoned, which is the highest office of the country, but 2 महीने का नोटिस देके, 2 months notice, by giving 2 months notice, civil proceedings can be initiated।
civil proceedings can be initiated for his personal acts. All right. क्लियर है यहां तक? टर्म ऑफ ऑफिस कितना है प्रेसिडेंट का? 5 साल. And he resigns by writing to vice president. He is also re-eligible for election. Sorry, eligible for re-election. I used the wrong term. Eligible for re-election. What is re-eligible? There is no term called re-eligible. So eligible for re-election. फिर से elect हो सकता है any number of times. कोई restriction नहीं है. जबकि president of US सिर्फ 2 terms, US में सिर्फ 2 terms होती हैं. 2 terms होती हैं president के पास. ठीक है? इसको impeachment के through remove भी किया जा सकता है president को. Impeachment of president. He can be impeached. तो वो कैसे होगा? फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसके लिए वही स्पेशल मेंबरशिप चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेस की. स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है? सॉरी. तो जो सारे डिसीजंस होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं. ठीक है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, सीएजी को अपॉइंट करता है. वो जो सारे हेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम. ठीक है? वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि कोई जो ऐसा काम जो डिस्कस हुआ है लेकिन वो कैबिनेट ने डिसाइड उस पर मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया उसको, तो वो मेरे नोटिस में लेके आओ उसको. ठीक है? एट यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है. ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स यूटीज यूनियन टेरिटरीज. ठीक है? थ्रू एलजी, जैसे एलजी होता है, या एडमिनिस्ट्रेटर. जैसे चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर है, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में एलजी है, पुडुचेरी में भी एलजी है. इंटर स्टेट काउंसिल को ये अपॉइंट कर सकता है. ठीक है? और पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है? ही कैन समन और प्रोरूग द पार्लियामेंट और डिसॉल्व द लोकसभा. मतलब समझे आप? इसका मतलब समझते हैं? प्रोरूग और समन का मतलब क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज समन एंड प्रोरूग? No, sir. समन क्या होता है? जब भी कोई पार्लियामेंट की सेशन या सिटिंग बुलानी होती है तो प्रेसिडेंट कॉल्स अपॉन दैट, उसको कहते हैं समन करना. ठीक है? और जब स्पीकर उसको एडजर्न कर देता है, कहते हैं ना द हाउस हैज बीन एडजर्न टिल लंच, तो एक होता है एडजर्न, एक होता है एडजर्न साइंड आई. साइंड आई का मतलब सॉरी, इनडेफिनेटली एडजर्न. जब इनडेफिनेटली टर्न उसको एडजर्न कर दिया तो प्रेसिडेंट फिर उसको प्रोरूग करता है कि सेशन पूरा बंद हो गया. ठीक है? और डिसॉल्व क्या मतलब है? कि लोकसभा डिसॉल्व क्यों होती है? या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, या सरकार खत्म हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया उस केस में. ठीक है? और ये जॉइंट सिटिंग को भी समन कर सकता है. ही कैन ऑल्सो समन द जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग इज समन बाय प्रेसिडेंट, summoned by the president. ठीक है? but headed by speaker. speaker heads the joint sitting. both houses की जो joint sitting होगी headed by speaker. ठीक है? जब जब भी एक नया सेशन होता है पार्लियामेंट का, हर साल जब फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर, इट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है?
जिसमें वो स्टेट की पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसीज को रिकाउंट करता है, या फिर नई नई जब सरकार बनती है तो उसका जो फर्स्ट सेशन, दैट इज ऑल्सो एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड दैट इज कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स. दैट फर्स्ट सेशन इज कॉल्ड एज द motion of thanks. First session of every year, every fiscal year is addressed by the president. ठीक है. He also appoints 12, he also nominates. ठीक है, हमने बोला था कि nominated members होते हैं, तो he nominates 12 members to the Rajya Sabha. किस फील्ड के? लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, LASS. ये कोड आपके लिए याद रखने में आसानी होगी. लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस. ठीक है. क्लियर है यहां तक? He promulgates ordinances in the recess of the parliament. मतलब जब लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सेशन में नहीं है तो उस वक्त कोई एक्ट लाना है तो वहां पे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या करेगा? ऑर्डिनेंस लेके आएंगे. जैसे हमने देखा दिल्ली सर्विसेज बिल का ऑर्डिनेंस लेके आए थे पहले. ठीक है, फिर उसको बिल में कन्वर्ट किया. तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. मनी बिल, to draw money out of Consolidated Fund of India, to draw money out of CFI, Consolidated Fund of India. ये भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं आ सकता. ठीक है. देन नो डिमांड फॉर ग्रांट, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड except for his recommendation. He appoints the Chief Justice of India and the judges of Supreme Court and High Court. ठीक है. इसके पास पावर होती है पार्डन करने की. पार्डन, रिप्राइव, गिव रिस्पाइट, ठीक है, रिस्पाइट एंड रिमिशन in certain offenses. Death sentence भी pardon कर सकते, can pardon death sentence also. He can pardon the death sentence as well. फिर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज आर एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम, इसके नाम पे होती हैं. ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. तीनों सर्विसेज को हेड करता है. सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. ठीक है. जैसे अब्दुल कलाम, ही कुड नॉट क्वालिफाई द SSB बट ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट. ठीक है. फिर कुछ वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास. वीटो पावर्स, एक तो होती है आपकी अंडर आर्टिकल, ये कौन सा है? 111. ठीक है. एक होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? सर विथहोल्ड करने का एसेंट पावर है हाँ, तो उसमें. he withholds his assent.
he withholds his assent. ठीक है, तो प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू विच बिल्स ये ऐसा करता है? एक तो हो गए प्राइवेट मेंबर बिल्स, ठीक है, उसकी मर्जी है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल पास हो या नहीं हो उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट का बिल कोई पास नहीं हुआ, इसका मतलब गवर्नमेंट, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बिल्स हमेशा पास होते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट बिल्स कब ये रिजेक्ट करेगा? व्हेन द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिजाइन, व्हेन द गवर्नमेंट और द कैबिनेट रिजाइंस। ठीक है, तो दो केसेस में इसके पास एब्सोल्यूट वीटो है, प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड देन द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट इज डिसॉल्व्ड, लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। देन यू हैव सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? ही रिटर्न्स द बिल, इसमें ही रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न्स फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम मिल गया, मतलब इसने थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया। मनी बिल्स के केस में ना, he cannot return the bill, he cannot return, he can either give his assent or withhold his assent, या तो ना देगा या दे देगा, या फिर वापस नहीं दे सकता, या आप इसमें चेंज करके लाओ, वैसा नहीं होगा। ठीक है, फिर आ गया आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होती है? इसमें इसको पेंडिंग रखेगा, कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड। ठीक है, जो यूएस प्रेसिडेंट होता है ना, उसको 10 दिन में बिल वापस करना होता है, और इंडियन प्रेसिडेंट का इंडेफिनेट। तो कहते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट ज्यादा बड़ी है, ही हैज अ बिगर पॉकेट देन द यूएस प्रेसिडेंट। एक इसकी वीटो स्टेट बिल्स के विद रिस्पेक्ट भी होती है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड, जस्ट अ सेकंड। या गाइस, वेयर वर वी? कहाँ तक पहुंचे थे? स्टेट बिल्स ना। Yes, sir. हाँ, तो स्टेट बिल्स के विद रिस्पेक्ट भी देयर इज सर्टेन वीटो, है ना। वीटो होती है स्टेट बिल्स के विद रिस्पेक्ट भी, कि वो उसमें क्या कर सकता है। मनी बिल्स के केस में वहां पे भी पावर नहीं है उसके पास, या तो वो असेंट देगा अपनी, गिव्स हिज असेंट, या विदहोल्ड कर लेगा। ठीक है, और रिटर्न करेगा अगर वो मनी बिल नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने देखा था तमिलनाडु में क्या हुआ था। आर एन रवि वहाँ के गवर्नर है, तो उन्होंने पहले क्या किया, बिल रिटर्न कर दिया असेंबली को। ठीक है, और जब फिर से रीपास करके असेंबली ने प्रेजेंटेड द बिल टू द गवर्नर, देन ही केप्ट इट फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने बोला कि इफ यू हैव रिटर्न द बिल इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो यू कैन नॉट सेंड इट फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द सेकंड केस। अगर आपको ऐसा था, फर्स्ट केस में ही भेजते। ठीक है, और पंजाब में भी ऐसा हुआ था कि 3 बिल्स थे जो रेकमेंड किए गवर्नर ने फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बस याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको होगी वीटो पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, इसमें क्या है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इन द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने ये पढ़ लिया पहले ही। तो ऑर्डिनेंस किस किस केस में बन सकता है? ऑर्डिनेंस कैन बी मेड इन ओनली दोज cases where the parliament has the power to legislate.
Parliament has the power legislate. मतलब जो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रेसिडेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी अलग सब्जेक्ट पे वो कर दे। तो दैट इज अब पैरेलल पावर नहीं है ये पावर, एक मतलब उसकी टेरिटोरियल, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट भी सेशन में है और प्रेसिडेंट अपने ऑर्डिनेंस भी पास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे पास करेगा जिनमें पावर है उसके पास, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पहले क्या था, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी वो एक डीसी वाधवा केस था, डीसी वाधवा। उसमें क्या है कि द रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस, रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे बिना बिना उस इंटेंट के कि आपने उस ऑर्डिनेंस को मतलब पार्लियामेंट में ले डाउन करना है, आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। ठीक है, तो बाद में ऊपर केस के बाद, ऊपर केस था 1970 का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज जस्टिसेबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? फिर हमने पार्डनिंग पावर इसकी देखी थी प्रेसिडेंट की। the power to pardon which article? Article 72। ठीक है, किस किस केस में दे सकता है? when the offense is with respect to union law, martial law or death sentence। ठीक है, सो ये पावर इंडिपेंडेंट है जुडिशरी के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट खुद तो नहीं डिसाइड करता, इट इज डिसाइड बाय द होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल कैबिनेट। जो प्रेसिडेंट के डिसीजन है एक्चुअली टेकन बाय द कैबिनेट, ही इज एडवाइज्ड बाय द कैबिनेट कि हाँ ऐसे ऐसे करो। ठीक है, पार्डन में क्या होता है? पार्डन में क्या होता है, सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों रिमूव हो जाते हैं। इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एज वेल एज कन्विक्शन। कॉम्यूटेशन में क्या होता है? कॉम्यूटेशन one form of punishment is substituted with another, one form is substituted with another form of punishment। ठीक है, which is generally lighter। कम्यूट कर दी पनिशमेंट, फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस था तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी। ठीक है, दैट इज कम्यूटेशन। देन यू हैव रिमिशन। रिमिशन क्या होती है? इट रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल 10 साल की जेल थी तो रिड्यूस करके 5 साल की कर दी। ठीक है, देन यू हैव रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है? लेसर सेंटेंस देना, लेसर सेंटेंस देन ओरिजिनली अवॉर्डेड, लेसर सेंटेंस कर देना। और फाइनल हो गया रिप्राइव। ठीक है, इट पुट्स अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, कि आपकी कन्विक्शन रहेगी बट जो एग्जीक्यूशन पे है उसको स्टे लगा दिया, स्टे ऑन दी।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? हाँ जी गाइस, Sir, in remission and respite, in both the things we are reducing, like we are giving the lesser sentence in the second one and reducing the period. So, isn't it kind of the same thing? नो नो, उसपे रिमिशन में रिड्यूसिंग द पीरियड, पीरियड रिड्यूस होता है ना। 10 साल की सजा है तो 10 साल से 5 साल की सजा कर दी, ठीक है। तो रिस्पाइट में सेंटेंस कम हो जाएगा, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? So, any example of this, like lesser sentence is given? मतलब ये कैसे समझाऊंगा मैं आपको? रिस्पाइट बोल रहे हो ना, देखो रिस्पाइट में क्या होता है कि जो ओरिजिनल आपको पनिशमेंट दी हुई है उसके अलावा कम पनिशमेंट दे देना। उसमें रिमिशन में क्या है, नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल वहां जेल थी 10 साल की, तो 10 साल की जेल ही दे दी आपको, ठीक है। रिगरस पनिशमेंट है तो रिगरस ही रहेगी, बट पीरियड रिड्यूस कर दिया। रिस्पाइट में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, अ कॉन्विक्ट इज अ वुमन वुमन ऑफेंडर हु इज प्रेग्नेंट, तो और कोई डिसेबल्ड बंदा है, किसी के स्पेशल चीजों को कंसिडर करके, है ना, स्पेशल फैक्ट और कंडीशन, सम डिसेबिलिटी और सम सच सिचुएशन, तो जो ओरिजिनल सेंटेंस अवॉर्ड हुई थी उसका सिर्फ पीरियड नहीं, जो सेंटेंस अवॉर्ड हुई थी सेंटेंस को ही कम कर दिया, ठीक है। Okay, sir, got it. हाँ, it is based on some special circumstance like pregnancy, disability, these things. All right. So we will close here, I think.